Good morning, everyone. Welcome to Cloud Seeker. This is AWS course, and we will be learning the AWS administration stuff in this course. While others join, if you have any questions, please raise your hand so I can allow you to unmute, and we can then proceed. Yes, Zed, you can unmute and ask. Zed, you need to unmute to ask question. Yeah. I'm audible to you. Yeah, you are. Hi, Zubair. This is Mohammad Hi. Zad here. So actually, I have one question from this side. Like it was AWS administration part, right? Yeah. So what all things we're going to learn in this? Like as it will be same as we are doing the projects in our companies. So it will Okay. be like that, or like it will be some difference. So basically, you will be I want to make sure that you people are work ready or project ready. So it won't be covering just basic, like basic means if you know the VMs, right, how to create VMs, and Right. just proceed with that. This is not how it will work. We will go in detail in all the core services that are required, and AWS has more than 200 services, and all the services are from the different category, or you can say different kind of projects. One is machine learning, the other is SAP, the other is database. Something are related to big data, some are related to web development, some are related to gaming development. So it Mm-hmm. covers a variety of industry. AWS covers. So we can we won't be learning all of them, but because it is not possible. People who are Mm-hmm. already working in this industry for more than 15 years, they also don't work on all the services. So Right. no point in beating around the bush. So basically we will cover the core services that are essential in order to Mm-hmm. start working on a project in AWS. And we will learn in a way whenever you are asked to work on a new service. So how will you start on that? You should not feel hesitant. Okay. And you should, with confidence, you should start working on the new services which we have not covered or you have never seen it before. So we Mm-hmm. will learn the approaches as well. I'll give you an example. Suppose you are from web development background, and in your project, if you change the company or if you get another project, or people who are not working, if they join the company, hopefully, so they will be asked to work on database, which they don't know. So how they will make sure that database platform is ready to use and available for the people who are database developers or administrators. You are AWS person, you are not database person, just keep in mind. Mm-hmm. So how you are going to available the playground for the people who are from that respective field. For example, there's a service for Hadoop called EMR. Okay, you don't know Hadoop. So how you are Mm-hmm. going to manage and provide that platform for them, for people who will be working on that? So basically, you will be managing AWS part, not that service. You're not going to deal with development, web development, database development, or big data development, or analytics, or gaming development, or machine learning. So think in that way. I want to make sure you people are ready or and confident to work on any service of AWS. And when I say any service, I will be showing you the approaches, how you will adopt a new service. And as far as what we are going to learn, if that is your question, so let me just share the content with you. Okay. My screen is visible, right? Yes. So starting from the introduction, like introduction is something important that we are going to go through today. We are going to understand regions and availability zone. Those who are not familiar, don't worry. We'll be starting from scratch. The user management, that is very important for you as an admin or a person who manages AWS to understand all this. Then this is the core service, heart of the AWS, EC2. In detail, we will be understanding people who are not from IT background or people who are not familiar with the operating system Linux. So don't worry, I will help you to understand what it is and how you can start working on it. Okay.
So don't panic about that if you don't know Linux. When we say that people from any background can learn this technology, so if we say it, we mean it. We will make sure that you know everything about Linux to get started. Okay. And then networking, which is again something very important. Without this, you won't be able to join the bridges or join the two sides. This is a bridge between any to and fro communication. Okay. Then encryption. This is what we are going to learn next. Then so this topic we will be splitting according to the services. We will be understanding how the pricing and the billing happens. Then the next thing is S3. This is a storage used in all of the projects, be it database, be it big data, analytics. Okay, so S3 is something you need to know in detail. So we are going to cover that as well. Okay, then we are going to cover this important service which hardly a few people teaches in market. Okay, and this also is a part of an elite training program. A normal training won't cover this, but still this is not again a normal training. I'll give you introduction to CloudSeqo a bit later, but understand that this is a very important service for monitoring and auditing. Okay, CloudTrail and CloudWatch. Then auto scaling and load balancing, Elastic Beanstalk, RDS, Lambda, and AWS CLI. Okay, these are the things we are going to cover. Zubir bhai, I have one question in that. Yeah. Same. If you are going through with AWS RDS, okay. Suppose I'm going with the AWS RDS. So what are the things that I'll get into that? What I learn in this? Okay. In the very beginning of my answer, I told you, right? If you are in a project where they are using, let's say, databases or data warehouse or big data. Okay. So for that reason, I have included one service that will help you, even if you're not from that background, how you are going to make sure that platform is available for that respective team. If it is a database team, how you are going to make sure RDS is working and available for them? If it is Redshift or data warehouse, how you are going to work on that? If it is big data, how you are going to make sure EMR is available for them? If it is analytics, how you are going to make sure the respective platform is available for them? So for that sake, I have selected one service. Okay. So you are not a database developer or administrator here. You are a AWS administrator. Okay. You are an AWS administrator. So how you are going to make sure that this service is ready to use and highly available for them. Okay. Okay. So you are not going to work on databases. Again, I'm repeating. If you are interested and if you know, it's very good. Like you can definitely work on multiple skills if you want. But as a part of this course, you will be teaching how this ground is available for them to play. You are not going to play on that. Okay. Okay. So any other question, anyone, or we can get started? Okay, cool. So again, welcome everyone so this is CloudSeqo. I am Mohammad Zubair. I've been taking or I've been conducting training for big data cloud for like more than 2 years as a professional trainer. And before that again, to be precise, since 2018, I have been taking trainings and this is our initiative to make learning affordable for everyone, because everyone deserves a better career. We have encountered many cases where people due to financial issues, they were not able to get admitted to a course. They were struggling. People buy courses on Udemy, but Udemy doesn't provide them detailed insight. They just give brief introduction, because if they're charging 1,000 rupees, they won't be able to give you all the detailed information about the respective course, right? So for that purpose, we have started this, and if we are conducting a training, we will try to provide training in a very layman format from scratch to advance, and we want to make sure that people from any background can enter into IT. Okay, this is the
motto of starting the Cloud Seco platform, and I'll also give you like uh, like introduction of how the websites look and how you're going to enroll to courses and all that. So you might have seen the video which we shared yesterday. Apologies for sharing it at last moment, but yeah, we tried our level best because of the weather. We weren't able to record things and share yesterday. Sorry about that. So yeah, so this is our motto, and we have started with AWS Cloud. Soon we are going to introduce Azure, Google Cloud, SharePoint, Power Apps, Kafka, Big Data, things like that, right? And DevOps. Yeah, but this is a step-by-step process again, and we are giving, first of all, we have reduced the prices from 25,000, 30,000 to straight about 5,000 for AWS. Also, as this is the beginning, this is this second batch, so we have given a huge discount, that is 1,300 or 1299 for you people. So we request you to let your friends and family know who are interested in learning AWS. They can like definitely avail this opportunity. So let me take you through this. Let me open an incognito window. Yeah. This is how the website will look to you. Okay. So you need to log in to go to your dashboard. You can go to courses. So you can see this is the previous batch. This is the demo which you have enrolled to. And after the demo is for 2 days. From third day, you won't be able to attend sessions from demo. The way you attended session here, similarly, you have to attend it from here. If you click on this, you have to buy the course instead of free. It was free, demo is free. Yeah, but for this course, you have to pay the amount and you have to buy the course. So it will ask you to enter your detail and log in and pay the amount. Once you log in, how it will look, I'll show you. So this is the previous course. It will show you continue or start. Now, this is how it will appear to you. The way we will progress, we will keep on adding the courses here. So let's say this is introduction, day 1 and day 2. What thing we covered will be slide summarized here. Okay. Let's say go to AWS Cloud, creating account, and then going through AWS overview. Then if we go to EC2 section, so you can see what all we have covered in detail. So based on your requirement, you can navigate through this menu and you can like start learning. Okay. So don't worry if you miss the demo sessions, we will be uploading it on YouTube and sharing the link to you. And if you miss any other session in between, you can definitely come back here and watch that recording. Okay. So it's good if you attend live, and again, you need to go through the recording one more time for better understanding. And we recommend you to use Zoom on your laptop or desktop. If you don't have that or access to the laptop desktop, you can definitely watch it on mobile. Yeah, but still, if you want to have like this is the example. So this is how you will be looking at the things. Okay. This is how the course will appear to you once you buy it. Done. So yeah. So how you are going to go there? If you come here, once you logged in, this dashboard option will appear to you. Go to the dashboard. So this is your active courses. Whatever you have purchased, it will be visible here. Okay. I hope you will have a great experience in our platform. Okay, let's quickly get started with the introduction of this AWS Cloud. People have joined. Okay, yeah. So exactly what we are going to use cloud for. So cloud is nothing but a platform where nowadays every industry is moving or utilizing for enhancing their analytics experience, their data storage experience, and their
web hosting experience, or you can name any industry or any technology, they're using AWS Cloud or any other. We are going to learn AWS Cloud here. So let's begin. First of all, I would like to give you the real introduction of data. So what data exactly is according to you? Okay. So if does anyone mind if I use Hindi a bit because for having a better rapport, or yeah, I'll try to use English as much as possible, but yeah. So what exactly data is? Data is nothing but any information. If I go by the definition, data is any useful information is called as data. You can Google it, nothing. So now let's make it layman. Layman means very easily understandable. Okay, in general terms. What exactly? So you see this website, right? So my website has a name. Okay, my website has a web address, that is cloudseco.in. Okay, my website has some options, courses, upcoming batches, dashboards. Okay, then it has a text appearing like a headline text: learning made affordable for everyone. Everyone deserves a better career. Okay, so what is this exactly? So this is nothing but data for my website. So if I categorize, so if I will give a title, let me open just a simple, let me show you. Okay, you have two databases, school database and employee database. Okay, so if I show you student table, okay, student table has, let me maximize this. Okay, student table has a column called roll number. Like I want to gather the information of the students. So what all attributes are there that can be collected to form something useful, to form a useful information. So this is called as columns. Okay, these are columns, and this is called as record or rows. ठीक है, ये column है and ये क्या है, record या row. एक record या एक row में किसी एक person के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, वी हैव टू मैनेज इन वन रिकॉर्ड. ठीक है, उसका नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, उसका परसेंटेज है, उसका रोल नंबर है. सो ऑल दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्टूडेंट. ऑल दिस कॉलम्स आर इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्टूडेंट, और इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट. ठीक है, तो एक इंसान की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या है, उसका एक रोल नंबर होता है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, परसेंटेज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है. ठीक है, वी कैन ऐड मल्टीपल कॉलम्स. तो ये हो गई एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में. जब हम मल्टीपल पर्सन या मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, कोई भी बोल दो, आप कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो. जैसा एक लैपटॉप के बारे में आप अगर, लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग. इफ आई ओपन amazon.in, ठीक है, कोई भी एक चीज ले लेता हूँ, एक कोई मोबाइल ले लेता हूँ, लेट्स से. ठीक है, just consider in this way. This mobile has a name. What is the name? Nazro N5 something. It has a color prime blue. उसका रैम है, उसका स्टोरेज है. ठीक है, और ये उसका अपियरिंग टाइटल है. ठीक है, उसका प्राइस है, उसका इनिशियल प्राइस क्या था, ये इनिशियल प्राइस, कितना परसेंट डिस्काउंट आ रहा है, एंड व्हाट इज द फाइनल प्राइस. दिस इज information about the mobile. And you have any other information. You can see replacement पॉलिसी है, वारंटी दिया है इस पे. ठीक है, डिलीवरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. तो ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है ऑन दिस वेब पेज, इट इज बीइंग फेच्ड और टेकन फ्रॉम समवेयर. इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम अ टेबल. मैं समझाने के लिए आपको सिंपल एग्जांपल दिया था, 3 रिकॉर्ड्स का, 3 कॉलम के साथ में. दिस इज स्टूडेंट टेबल. इफ सिमिलर टेबल्स आर गैदर्ड टुगेदर, उससे बनता है एक डेटाबेस. ठीक है, टीचर डेटाबेस. सो नाउ आई सॉरी टीचर टेबल. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टीचर? His name is Rakesh, last name is Kumar. He is the class teacher for 10th standard. So this is information about this teacher. Okay, टीचर का आईडी होता है. तो ये इंफॉर्मेशन है जो सिमिलर इंटरेस्ट में फॉर्म करती है. सो दिस इंफॉर्मेशन और दिस टेबल व्हाइल गैदर्ड टुगेदर आर फॉर्म्स अ डेटाबेस. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट डेटाबेस. नाउ इफ वी टुवर्ड्स हैव अ लुक टुवर्ड्स राइट,
दिस इज एम्प्लॉय डेटाबेस। एम्प्लॉय मीन्स कहीं पर भी काम करने वाला कोई एम्प्लॉय। हमने रैंडमली कुछ एग्जांपल लिए थे यहाँ पर। तो उसका एक आईडी होता है या उसका नंबर होता है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और उसका डिपार्टमेंट नंबर है। सो ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, सो डिपार्टमेंट का आईडी दिया है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आईडी मुझे कहाँ मिलेगा, मतलब 1 2 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो इफ आई गो टू डिपार्टमेंट टेबल, आई कैन सी डिपार्टमेंट नंबर 1 इज HR डिपार्टमेंट, इट इज लोकेटेड इन मुंबई। डिपार्टमेंट नंबर 2 इज फिनांस डिपार्टमेंट, इट इज लोकेटेड इन पुणे। 3 इज टेक्निकल डिपार्टमेंट, लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, तो ये सिमिलर इंफॉर्मेशन और सिमिलर टेबल्स व्हेन दे गैदर टुगेदर दे फॉर्म अ डेटाबेस। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल था डेटाबेस एंड डेटा का। डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई हैव शोन यू टेबल्स। ठीक है, एंड सिमिलर टेबल्स और सिमिलर कैटेगरी ऑफ टेबल्स फॉर्म्स अ डेटाबेस। ये बेसिक डेफिनेशन है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लेट मी। ठीक है, नाउ सी, डेटा इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 structured, number 2 semi structured, number 3 unstructured। अभी अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई आर वी लर्निंग डेटा, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न डेटा रिलेटेड कोर्स, राइट? बट ऑलवेज रिमेंबर, क्लाउड पे जितने भी सर्विसेज है सब में डेटा का स्टोरेज कंपलसरी होता है। एवरीथिंग, वेब डेवलपमेंट, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेसेस, ओके, SAP, एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट will have data. Without data no company would exist। याद रखो, हम किसको देखो, obviously understand this, you will be working on AWS cloud or some other cloud, okay? किसके लिए काम कर रहे हैं? एक XYZ कंपनी, उसका क्लाउड पे आप काम कर रहे हो। वो XYZ कंपनी लेट्स से आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री है या ई-कॉमर्स, लेट्स से वो फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट का अपना डेटा अगर वो AWS क्लाउड पे स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो आपको बेसिकली क्लाउड के साथ साथ उस पे रखा हुआ डेटा भी, डेटा की सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, ये इंश्योर करने का पैसा देता है। इफ यू आर गेटिंग पेड लैक्स, किस चीज के लिए? सिर्फ ओपन करके रिफ्रेश करने के लिए तो पे नहीं करेंगे ना, यू हैव टू मैनेज द डेटा। सो ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज, देन ओनली यू विल बी फैमिलियर एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू cater the data or cater the services in a better way। ठीक है, you need to work with understanding, this is a key to success। simple work काम का नहीं है, work with understanding, okay, then you will work smartly, always remember this। ठीक है, now come back to our topic, what is data? ठीक है, data is of 3 types, structured, semi structured and unstructured। so structured data क्या है? कुछ नहीं है, टेबल है। टेबल में क्या है? ठीक है, मेरे घर में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, नंबर 1 my father, his name is something, okay, then what is his designation at home? Father। second, mother। third, my sister। तो ये कुछ नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन को एक साथ ला रहा हूं, उनके सिमिलर एट्रीब्यूट्स को गैदर करके कुछ बना रहा हूं, वो होता है टेबल, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, उसी तरह आप वेबसाइट के बारे में ले लोगे, तो व्हाट इज द वेबसाइट? ठीक है, वेबसाइट का नेम होगा कुछ तो facebook.com, फेसबुक नाम है उसका कंपनी का, उसकी वेबसाइट का नाम है facebook.com, ओके, एंड देन उसका लाइक कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा US लेट से। दूसरा वेबसाइट है इंडियन रेलवे, उनका है irctc.com, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ कुछ वेबसाइट्स के सिमिलर एट्रीब्यूट्स को एक साथ कलेक्ट किया, तो ये क्या बन गया? एक टेबल। एंड टेबल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड डेटा। एक्सेल शीट में क्या बनाते हैं हम? टेबल्स ही या स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप स्ट्रक्चर्ड डेटा इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है?
जैसा कि ये नाम इंडिकेट कर रहा है, सेमी, पार्शियली स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन्स उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, कुछ नहीं होती है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद में उसका फर्स्ट नेम है। ठीक है, उसका लास्ट नेम है, उसका एड्रेस है। हम्म, वो हैंडीकैप है क्या? ठीक है, वो हैंडीकैप नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट है, उसका भी रोल नंबर है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका एड्रेस है। ओके, बट वो हैंडीकैप है। ठीक है, तो मैं उसको लिखूंगा डिसेबिलिटी। उसमें क्या डिसेबिलिटी है? लेट्स से उसका थोड़ा सा एक पैर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ठीक है, एक कॉलम ऐड हो गया एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी का, जिसमें फॉल करेगा लेग। ठीक है, और उसका फिर कॉन्टैक्ट। तीसरा तीसरा पर्सन है, उसका रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। ठीक है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी सब में आ जाओ, सबके फादर की इंफॉर्मेशन है। हम्म, सबके फादर की भी इंफॉर्मेशन ऐड किया, इसके भी फादर की इंफॉर्मेशन ऐड किया, बट इसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, इसके फादर मदर नहीं है, तो ये किसी के साथ रहता है, इसके अंकल के साथ। तो एक कॉलम आ गया है गार्डियन। उसको किसने, लाइक उसका गार्डियन कौन है, कौन इसका उसको टेक केयर कर रहा है? ठीक है, वो गार्डियन। अभी ये बोलो, ये कॉलम सब में है क्या? नहीं है। डिसेबिलिटी सब में है क्या? नहीं है। तो व्हाट इज दिस? इफ यू सी लाइक एन ओवरव्यू, दिस इज स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड फादर नेम है। बट इफ यू सी, यू कैन have one more information here, additional thing, depending on the use case. ये बंदे का कुछ प्रॉब्लम है, so he has a disability. This person, his parents are expired, so he is living with the guardians. ठीक है, तो गार्डियन कौन है? उसके अंकल है, लेट्स से। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट मैचिंग विद द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड। दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड भी है और स्ट्रक्चर्ड नहीं भी है, तो दिस इज ऑल टुगेदर कमिंग अप सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अभी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को कैसा स्टोर करते हैं? अभी हमने स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को टेबल में स्टोर किया, राइट? तो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के टाइप्स होते हैं। एक बहुत ही कॉमन है जेसन। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स आपको गूगल पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, बट नहीं आता है ये समझ के चलता हूं मैं, कुछ नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट ऐसा करके लिखते हैं उसको, स्टूडेंट, उसके बाद में उसको रोल नंबर, रोल नंबर 1। ठीक है, स्लैश रोल नंबर। मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। ये आपको मैं जेसन तो नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सएमएल बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जेसन भी ऐसी होता है सिमिलरली, मेरे को एग्जैक्टली सिंटैक्स याद नहीं है उसका। तो इसका मतलब ये है कि जब आप वर्क कर रहे हो फिर भी आपको चीजें याद नहीं है, तो इफ इट इज ओके, तो यस, इट इज ओके, बिकॉज यू हैव इंटरनेट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ठीक है, रोल नंबर हो गया, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम हो गया, XYZ, फर्स्ट नेम को एंड कर देंगे। ठीक है, और ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंड हो गई। फिर वापस से स्टूडेंट आएगा यहाँ पर, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, उसका फर्स्ट नेम आएगा और उसका गार्डियन आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन सब में है क्या? नहीं है, लिमिटेड जगह है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्ड भी है और स्ट्रक्चर्ड नहीं भी है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड। आई होप नाउ इट इज क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड? ठीक है, द लास्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल मैं आपको नहीं दूंगा, आपको अनस्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल देगा Amazon। नाउ इफ आई ओपन amazon.com, ये क्या था? मोबाइल। मुझे एक मोबाइल लेना है। ठीक है, मैं एक मोबाइल लेने आया हूं, मुझे मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब नजर आ रही है। इनिशियल प्राइस क्या था, कितना परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना है, इसका कलर कौन सा है, इसका नाम क्या है, एवरीथिंग आई कैन सी हियर, राइट? बट इफ आई स्क्रॉल डाउन, लेट मी, ओके, आई वांट टू परचेस अ स्पेसिफिक मोबाइल। ठीक है,
ये मोबाइल मुझे लेना है, आई एम सर्चिंग फॉर दिस, आई एम गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मोबाइल, ठीक है, मैं आसानी से पढ़ रहा हूँ उसको। बट ये सब क्या है, ये दूसरा मोबाइल क्यों आ गया, मुझे तो ये चाहिए नहीं था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे नजर आ रही है वन प्लस वाली, मुझे होना ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ ये है। तो ये नया फील्ड क्या है, फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, ठीक है। और नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेडफोन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, मुझे कुछ और नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरे फोन्स भी नजर आ रहे हैं, ये इक्वेशन आंसर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, और नीचे जाऊं तो मुझे कुछ चार्जर नजर आ रहा है, एडाप्टर, ये सब क्या है, ठीक है। अगर आपने कभी Amazon या फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस किया, तो आपको, जैसा मैंने मोबाइल परचेस किया, तो मुझे मोबाइल कवर भी देगा सजेशन में वो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास डिस्प्ले हो रही है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, वो बस अल्गोरिदम बेस्ड काम करता है, आपको डेटा फेच करता है। अगर मान के चलो कि एक पर्सन है, आज कोई सेल है, ठीक है, और ये सैमसंग के मोबाइल पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट था, लोगों ने खरीदा, मान लो 10,000 लोगों ने मोबाइल खरीदा, ठीक है। और एक चीज है, एक शूज है, उस पे भी डिस्काउंट था, वो भी एक 9,000 लोगों ने खरीद लिया। तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन वो शूज सजेशन में आ जाएगा, पीपल हु हैव परचेज दिस मोबाइल दे हैव आल्सो परचेज सम XYZ प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट रिलेवेंट है इररिलेवेंट है फर्क नहीं पड़ता अल्गोरिदम को, जो हुआ अल्गोरिदम आपको लाके दिखा देगा, ठीक है। सो दैट शूज इज नॉट एट ऑल relevant to this mobile, that shoes is not something I was searching for, but still it appears on my screen. So using some algorithm, Amazon suggests you or Amazon traps you, Amazon और Flipkart traps मतलब के उनको अपना सेल बढ़ाना है, तो वो आपके सामने लाके एक डेकोरेटेड वे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो नाउ व्हाट यू विल सी, अच्छा ये शूज पे ऑफ चल रहा है ना, चलो मैं शूज भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये मोबाइल कवर भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये हेडफोन्स भी ले लेता हूँ, ठीक है। सोचो ना, मतलब एक आदमी एक ही मोबाइल लेगा ना, दूसरा मोबाइल क्यों सजेशन में आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने एक साथ ये दो मोबाइल खरीदे हैं, इसलिए Amazon मुझे भी लाके दिखा रहा है कि तुम भी खरीदना है तो खरीद लो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे 3 आइटम आते हैं, तो इट इज presented to you based on the activity done in past, okay, so this is called unstructured information। ये एक one of the example है, and there are lot many example, तो अभी के लिए समझने के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। so this is table, this is nothing but the structured information। अगर किसी स्टूडेंट के लिए कोई एक्सेप्शनल फील्ड वगैरह आ जा रही है, सो दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसा गार्डियन आ गया या डिसेबिलिटी स्टेटस आ गया, ठीक है। एंड थर्ड इज अनस्ट्रक्चर्ड, यू हैव ऑलरेडी सीन। any questions, any doubt in that? ठीक है, so this is how the data is stored and presented। but अभी क्या रियल टाइम पे ऐसे ही डेटा होता है, चलो अनस्ट्रक्चर्ड का तो देख लिया हमने Amazon में, बट रियल टाइम में ये ऐसी डेटा होता है क्या। क्वेश्चन इज के डेटा क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स बनाया था आपको बताने के लिए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा तो बताया आपको मैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है जो क्लाउड यूज कर रही है, ठीक है। ई कॉमर्स, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, Amazon का वेबसाइट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, eBay हो गया, बहुत सारी है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये आपका जो सन लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, बजाज का इंश्योरेंस है आपका, अपोलो इंश्योरेंस है, ये जो भी है ना हेल्थ केयर में आते हैं, इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्रीज आती है आपके, सॉरी माय बैड, हेल्थ केयर में आपको आएगा आपके फार्मास्यूटिकल्स, आप लोग मेडिसिन से जो दवाइयां खरीदते हो ना, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ठीक है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक दवाई है, लेट्स से कोई भी सिंपल सी दवाई ले लो, डिस्प्रिन, सर दर्द के लिए। डिस्प्रिन एक दवाई का नाम है, उसकी एक कंपनी है, उस दवाई में कितने कितने कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स का नाम क्या है, वो कितने कितने ग्राम्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। ये बारीक बारीक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, उस यूनिट की एक्सपायरी कब है, कहाँ कहाँ सप्लाई हुआ है, किन किन सप्लायर्स को सप्लाई हुआ, कौन सी सिटीज में सप्लाई हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन वो लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।
ठीक है, स्टोर करते हैं। कब से? जब से वो लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में इफ यू विजिट योर स्कूल, सो यू आर नाउ इन 10th क्लास, ठीक है, लेट्स से, एंड यू हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। उस स्कूल में आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था और अभी आप 10th क्लास में हो। ओके, somebody asked to repeat the semi structured, just allow me some time, let me complete this, I will repeat semi structured. Okay, तो आप लोग स्कूल में हो, लेट्स से 10th क्लास में। अगर कोई पूछता है आपके स्कूल से कि आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका परसेंटेज क्या था, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? दे विल गो टू द ऑफिस, दे विल टेक आउट अ रजिस्टर, ठीक है, उसमें आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रहेगी जब वो फर्स्ट में थे, जब वो सेकंड में थे, ठीक है। उनका एड्रेस पुराना वाला रहेगा, अभी आप 10th में हो, नया एड्रेस रहेगा। तो ये काम का है क्या, पुराना इंफॉर्मेशन स्टोर करना? यस, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी कंपनी और फॉर एनी इंडस्ट्री, ठीक है, उनके लिए उनका डेटा सब कुछ है, याद रखना। वो काम कर रहे हैं, वो दवाइयां बना रहे हैं, इट्स गुड, दे आर सेलिंग समथिंग ऑन ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये तो उनका बिजनेस है। लेकिन क्या इन लोगों को इंफॉर्मेशन स्टोर करना जरूरी है? यस। कब से? जब से वो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन उनका बहुत बड़ा एसेट है। अगर किसी कंपनी का डेटा जो है प्रीवियस वाला, वो उसके पास से डिलीट हो जाए, तो वो कंपनी लॉस में चली गई, ठीक है। कंपनी को आगे ग्रो होने के लिए पिछला डेटा बहुत जरूरी है। मैं ये अभी जो बता रहा हूँ, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। एनी इंडस्ट्री और एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ दे वांट टू ग्रो, दे नीड डेटा फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। और कौन सी इंडस्ट्री है? बैंकिंग, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। वो लोग, आपका पैसा अभी है, आप देख सकते हो, आप अकाउंट में लॉगिन करो या पासबुक खोलो, तो आपके पासबुक में पुरानी से पुरानी इंफॉर्मेशन रहेगी। मान लो मेरा पासबुक खाली है, अगर मैं बैंक में जाऊं और मैं बोलूं कि 2001 से मेरा अकाउंट है यहाँ पर और मुझे उसका ट्रांजेक्शन प्रिंट करके चाहिए, तो वो पासबुक पे प्रिंट करके देंगे। क्यों देंगे करके? क्योंकि पास उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए स्टोर करके रखे इतने दिन तक? आप एक कस्टमर, राइट, एसबीआई के, आप जिस भी सिटी में रहते हो, आपके मोहल्ले में आराम से 1000 लोग निकल जाएंगे जो एसबीआई के कस्टमर है। आपकी सिटी में 2-3 लाख लोग निकल जाएंगे जो एसबीआई के कस्टमर है। पूरे इंडिया से करोड़ों से है लोग जो एसबीआई के कस्टमर है। सो करोड्स ऑफ पीपल आर having account in SBI from long time. Now SBI is storing all of the information about everyone from the beginning. Why? इसलिए कि आपने इंफॉर्मेशन मांगी आपको दे दें? नहीं, उनके लिए हर इंफॉर्मेशन, आपका हर ट्रांजैक्शन, आपने इवन एटीएम पे जाके स्टेटमेंट निकाला ना, तो आपको वो भी एक ट्रांजैक्शन काउंट होता है उनके पास में। वो हर चीज जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की थी, आपने अगर इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन किया और कुछ नहीं किया और लॉग आउट कर लिया, वो भी वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। एवरी माइनर एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म, इधर इन बैंकिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, जो भी है, वो सब लोग ट्रैक करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट विल हेल्प देम टू ग्रो। अभी कैसा ग्रो करते हैं थोड़ी देर में देखेंगे, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। दे विल स्टोर every single information what they can। अभी अंदाजा लगाओ, जैसे फाइनेंस है, ये एग्जांपल देता हूँ, एयरलाइंस। व्हाट इज एयरलाइन? प्लेन्स, राइट। इंडिया में कितने एयरलाइंस हैं? ठीक है, वो लोग कब से ऑपरेट कर रहे हैं? आपको लेट्स से दिल्ली से पूना जाना है, ठीक है, या हैदराबाद से बैंगलोर जाना है, ठीक है, या मुंबई से आपको लंदन जाना है। इतने सारे एयरलाइन है, ये इंडिया से बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कितने सारे हैं? कोई भी एक एयरलाइन, कतर एयरवेज ले लो या कोई और, एयर इंडिया ले लो, इनके पास में कितने पैसेंजर्स कब से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसने फ्लाइट में खाना बुक किया है, नहीं किया है, एवरी इंफॉर्मेशन दे विल बी स्टोरिंग। एवरी इंफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम द पास्ट, जब से वो लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं इसका, इंफॉर्मेशन का? तो अभी एग्जांपल ले लो, एक पैसेंजर एक फ्लाइट से जा रहा है, तो सबसे पहले पैसेंजर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसका पासपोर्ट नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ पे जाएगा, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, कब फ्लाइट कब उड़ने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक पैसेंजर के रिगार्डिंग आ गई है। अभी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, वो प्लेन का आईडी क्या है, कहाँ से लैंड हो रहा है,
कहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करेंगे। तो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेरे को ना इतने सारे कॉलम्स लगेंगे या इतना सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन कई साल की हो जाएगी तो सोचो मेरा डेटा का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डेटा बड़ा होता जा रहा है ना, दिस डेटा बिकमिंग बिग इज अ प्रॉब्लम। और जो आप बिग डेटा सुनते हो ना, बिग डेटा इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, बिग डेटा इज अ प्रॉब्लम। डेटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। पहले मेरे पास सिर्फ एक फ्लाइट उड़ती थी रोज का, अभी मेरे पास ना हर रोज कम से कम 15-20 फ्लाइट हो रही है। पहले मेरे पास में सिर्फ एक फ्लाइट में से मेरे पास 15-20 पैसेंजर जाते थे, अभी मेरे पास रोज के 1000 पैसेंजर जा रहे हैं। तो डेटा जनरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, डेटा स्पीड से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ज्यादा बड़ा भी होता जा रहा है। तो ये डेटा जब ग्रो होता है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मतलब इसको मैनेज कैसा करे, इसको हैंडल कैसा करे, मेंटेन कैसा करे, और इसको प्रोसेस कैसा करे। तो ये सब मिलके बनता है बिग डेटा प्रॉब्लम। अब इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो जो भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ चुकी है, उसको रेफर किया जाता है बिग डेटा टेक्नोलॉजी से। बट बिग डेटा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बिग डेटा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, याद रखना। होटल इंडस्ट्री, चलो गवर्नमेंट ले लो, आईआरसीटीसी ले लो, सबसे बेसिक एग्जांपल। वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया, सो अंडरस्टैंड, इन आईआरसीटीसी कितने टिकट्स बुक होते हैं रोज के। आप जिस भी सिटी में रहते हो वहां से ट्रेन आती और जाती है, राइट। कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितनों का रिजर्वेशन है, कितने सीट्स का रिजर्वेशन अवेलेबल होता है, कितने ट्रेन आती है दिन भर में। ये तो सिर्फ वो है जो आपके ट्रैक पे आप नोटिस कर रहे हो। अब अंदाजा लगाओ पूरे इंडिया में कहाँ से कहाँ हुए होता है। ठीक है, पीपल हु आर फ्रॉम नागपुर दे माइट अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। नागपुर इज इन सेंटर ऑफ इंडिया, रेलवे ट्रैक के हिसाब से। नागपुर इज अ प्लेस, इट कनेक्ट्स टू ऑल दी फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से हर ट्रेन गुजरती है हर डायरेक्शन में। यहाँ का लाइक ट्रैफिक इज वेरी ह्यूज, रेलवे का, नागपुर का। सो पीपल हु आर फ्रॉम नागपुर दे कैन इजीली रियलाइज कि कितना डेटा जनरेट होता होगा रोज की टिकट बुकिंग का। ठीक है, तो ये आईआरसीटीसी करता क्या है, इसका कहाँ स्टोर करता है, कैसा रखता है। ठीक है, आप जाके आपका पुराना टिकट चेक कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये सब चीजें अंदाजा लगाओ कि डेटा का साइज कितना बड़ा होगा। ये इंडस्ट्रीज है। ठीक है, नाउ रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। amazon ले लो, या कोई और ले लो, फ्लिपकार्ट, या कोई और कोई रिटेल का शॉप ले लो, बाटा का शोरूम ले लो, कोई भी। उन लोग चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। आपको तो शूज मिल रहा है, लेकिन उनका सेल्स कुछ और रहता है, उनका सेल्स बहुत बड़ा रहता है। मैंने जो एग्जांपल दिखाया आपको यहाँ पर, 3 रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड, ये एम्प्लॉय देख लो, ये समझने के लिए। बट रियल टाइम डेटा कैसा होता है उसका एक मैं आपको टीजर दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, दिस इज हाउ द रियल टाइम डेटा विल लुक लाइक। अभी आप सिर्फ देखते रहो कि ये होता कैसा है। ओके, व्हाट थिंग्स रेस्ट्रिक्ट टू कंपनीज फ्रॉम डिलीटिंग द ओल्ड इंफॉर्मेशन डेटा। whoever asked this question, Bhushan, it is very excellent question in order to understand the importance of data. So the question Bhushan asked is, what thing restricts to companies from deleting the old information? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कंपनीज ओल्ड डेटा को डिलीट नहीं करते हैं और डेटा स्टोर करने का पैसा देते हैं। ठीक है, ये देखो एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं। इन लोग इससे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करके क्या अचीव करते हैं ये लोग, फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपका हेडिंग्स है, इसको मैं लेट्स मी हाईलाइटेड। ठीक है, रीजन कौन सा है, अफ्रीका रीजन है, ठीक है। कंट्री कौन सी है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। फ्रूट्स है, ऑफलाइन सेल है उनका, ठीक है। ऑर्डर प्रायोरिटी मीडियम, हाईएस्ट, लोवेस्ट ऐसी है। ऑर्डर की डेट क्या है उनका, ऑर्डर का आईडी क्या है, ठीक है। शिपिंग कब हुई, हाँ, कितने यूनिट्स बिके हैं, यूनिट सोल्ड, पर यूनिट कितना प्राइस था, 9 पॉइंट समथिंग, हाँ, उनको कितना कॉस्ट पड़ा था,
खरीदते टाइम 6 पॉइंट समथिंग, उनका रेवेन्यू कितना है, इतना है, ठीक है। जो भी कंपनी है उसका सेल्स का डेटा है, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये इतना, ये कितने रिकॉर्ड है, ये मैं 24 रिकॉर्ड तक हाईलाइट किया, मतलब -1, ठीक है। तो पहला वाला तो टाइटल है, छोड़ दो। तो मैंने 23 रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है, इतना सारा डेटा निकला। अभी ये कितना डेटा है मन के मेरे पास, ये बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नंबर देखना है यहाँ पे, ये 20 नंबर का रिकॉर्ड है ना। अब बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, नंबर देखो, मेरा शीट लोड भी नहीं होता है, इसलिए इतना टाइम लगा लोड होने को। 10 लाख एक, मतलब मेरे पास 10 लाख रिकॉर्ड है। 10 लाख, सोचो ना, इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने कितना टाइम लगा होगा, या जनरेट होने कितना टाइम लगा होगा। किस किस कंट्री से कितना कितना माल, किस कैटेगरी में, फ्रूट से, क्लोथ से, बेबी फूड से, ठीक है, पर्सनल केयर है, कहाँ कहाँ कितना बिका, किस डेट पे मैंने ऑर्डर किया, किस डेट पे सेल हुआ, कितने यूनिट सेल हुए, कितना प्राइस था, कितना एक्चुअल कॉस्ट था, टोटल बेनिफिट कितना हुआ मेरे को, ठीक है। ये सब ये लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का 1% भी नहीं है, 0.1% है। सिर्फ एक एक कोई कंपनी की सेल्स की इंफॉर्मेशन का ये 0.1% है, जिसमें 10 लाख रिकॉर्ड है। तो सोचो उनका 100% कितना होगा, बस इमेजिन करो। 10 लाख रिकॉर्ड मतलब, ये अगर कोई बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी, ठीक है, उसके उसके यूजर्स का रिकॉर्ड है, एक मान के चलो, एक सिटी के, ठीक है। ये जब कंट्री वाइज जाएगा, सिटी तो छोड़ दो, पूरा कंट्री, और पूरा कंट्री छोड़ दो, और भी कंट्रीज ऐड कर लो, amazon का सेल कितना है। amazon.com पे सिर्फ इंडिया से थोड़ी लोग ऑर्डर करते हैं, मैं डॉट कॉम की बात कर रहा हूँ। यूएस, यूरोप, ठीक है, इंडिया, चाइना, जो भी कंट्री आपको याद आ रही है ना, वो हर कंट्री amazon.com से ऑर्डर करता है। अभी amazon.in तो अभी अभी स्टार्ट हुआ। amazon.com का डेटाबेस क्या होगा सोचो आप, और क्या क्या प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, मोबाइल्स, क्लोथ्स, ठीक है, फूड, और क्या बोलना है आपको, जो बोलना है बोल दो, आपको कार्स के सामान मिलते हैं, बाइक्स के सामान मिलते हैं, ठीक है। आपको यू विल गेट मिरर्स, यू विल गेट फैन, यू विल गेट लाइट, एनीथिंग, होम अप्लायंस मिलता है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग यू कैन ऑर्डर फ्रॉम amazon। तो जस्ट इमेजिन दी स्केल एट विच amazon इज सेलिंग। तो ये तो सेलिंग का हो गया, जब amazon खरीदता होगा उसका कितना डेटा होगा। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, amazon.in की लेते हैं एग्जांपल, या फ्लिपकार्ट की लेते हैं। यू पीपल माइट हैव रियलाइज के पहले amazon पे या फ्लिपकार्ट पे आप लोग उतना ज्यादा खरीदी नहीं करते थे, आजकल थोड़ा ज्यादा करने लगे हो, ठीक है। आज से 3 साल 4 साल पहले उतना ज्यादा आप लोग नहीं खरीदते, ठीक है। उससे और थोड़ा पहले और कम लोग खरीदते थे। अभी हर दिन आप जितना खरीद रहे हो, आपसे 15 से 20 टाइम ज्यादा खरीदने वाले लोग मौजूद है आज भी, ठीक है। सो कितने कस्टमर रोज अमेजोन पे परचेस कर रहे हैं, उनको पहले अकाउंट बनाना रहेगा उनका, राइट। जब वो अकाउंट बनाते हैं ना अमेजोन के ऊपर, तो सबसे पहले आता है एक कस्टमर डेटा, ठीक है। कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, सिटी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, समथिंग समथिंग समथिंग। रोज के कितने कस्टमर आते होंगे अमेजोन पे, नए कस्टमर। अच्छा, और मैं, आपको क्या लग रहा है मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है क्या अमेजोन पे? सो मेनी पीपल दे हैव मल्टीपल अकाउंट्स, सो ईच अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर, ठीक है। एंड व्हाट इज माय कस्टमर आईडी, लेट्स से माय कस्टमर आईडी इज 10,001, ठीक है। योर कस्टमर आईडी इज 10,002, कोई और नहीं, ठीक है, कस्टमर टेबल हो गया। उसके बाद में मैं, इन्वेंट्री है मेरी अमेजोन में, मैं स्टोर कर रहा हूँ डेटा या मेरा सामान, ठीक है। मैं लाके लोड करता हूँ, फिर जो भी ऑर्डर किया उनको डिलीवर करता हूँ, तो ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री की भी अपनी डिटेल्स होती है। उसके बाद में परचेस है, ठीक है, परचेज है। अमेजोन परचेज भी करता है, अमेजोन सेल भी करता है। अमेजोन पे आप लोग क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, ठीक है, ऑर्डर करते हो। हर ऑर्डर डिलीवर होता है क्या, हर ऑर्डर में क्या होता है, कस्टमर किसने ऑर्डर किया, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, क्या क्या ऑर्डर किया, उसका प्राइस कितना था, उसके बाद उसकी डिलीवरी क्या थी, डिलीवरी डेट क्या है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। कुछ लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो उसका स्टेटस क्या है, कैंसल्ड है, फुलफिल्ड है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। इतनी जनरेट होती है कि नॉर्मल हमारा सिस्टम, हमारा लैपटॉप ये सब चीजें होल्ड नहीं कर पाते। इसलिए जब डेटा ग्रो होता है ना, तो क्लाउड की जरूरत ऑटोमेटिकली आती है। इसलिए हमारे लिए जॉब लेना आसान है, क्योंकि लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट इमेजिन द स्केल एट विच डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड।
नाउ दिस इज हाउ द रियल टाइम डेटा लुक्स लाइक एंड हैपेंस, ठीक है। अभी किसी का क्वेश्चन था कि ये कंपनी डेटा डिलीट क्यों नहीं करती है, ऐसी क्या चीज है जो डेटा डिलीट करने से रोकती है उनको। इफ वी कम हियर, ठीक है, फर्स्ट थिंग, हाउ मच डेटा इज जनरेटेड इन अ डे, वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू इमेजिन कि ठीक है, Amazon पे कितने लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, कितने ऑर्डर प्लेस होते हैं एक दिन में, एक एक सिटी से, तो पूरे कंट्री से कितना प्लेस होता होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो डिलीट क्यों नहीं करते, तो मैं इसको ऐसा लिखा हूं, व्हाई कंपनी स्टोर द डेटा, ठीक है। उसके दो शॉर्ट यूज है। पहला है क्विक क्वेरीज, ठीक है। आपने गए, आपने amazon.com खोला या डॉट इन खोला, आपको आपके रिसेंट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के ऑर्डर सामने आते हैं, ठीक है। ये जो स्टोर्ड डेटा है ना, ये आपको आंसर दे रहा है यूजर क्वेरीज के लिए। और यूजर कभी भी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, जो रिसेंटली हुआ है, ठीक है। आप जाके बैंक से, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालते हो ना, तो यू विल गेट ऑल द रीसेंट ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये आपका, आपको एड्रेस करने के लिए है, जो डेटा वो स्टोर कर रहे हैं। सेकेंड पर्पस क्यों डिलीट नहीं करते हैं, बिकॉज दे नीड टू मेक बिजनेस लेवल डिसीजंस, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेटा मतलब कि उनका पूरा पुराना डेटा, ठीक है, दे स्टोर ओल्ड डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा दे परफॉर्म सम एनालिटिक्स ऑपरेशन, और उससे वो एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इतना जो 10 लाख रिकॉर्ड है ना, इससे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एक, मतलब हाफ पेज का डेटा निकालूंगा आउटपुट में। वो डेटा मुझे बोलेगा कि कौन से ईयर में, ठीक है, लेट्स से मैं रिक्वायरमेंट फ्रॉम 2010 टू 2020, किस कंट्री से मेरा किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है। फ्रांस से मेरा वेजिटेबल्स का सेल हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा। ओमान से मेरा बेबी फूड का सेल हुआ है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ देख के समझ में आएगी क्या, नहीं। तो इसके ऊपर एक टीम काम करती है, एक क्या बहुत सारी टीम काम करती है, पूरा प्रोजेक्ट चलता है। बिग डेटा के टूल्स, एनालिटिक्स के टूल्स यूज करते हुए ये लोग एक, मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ ये रिपोर्ट देते हैं कि तुम्हारा 2010 से लेके 2020 तक ओमान में बेबी फूड का सेल सबसे ज्यादा हुआ है। अब जब ये सेल मेरा सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मैं अगला इन्वेस्टमेंट भी बेबी फूड पे ही करूंगा। अंडरस्टैंड। अभी आपके सिटी में मोबाइल्स के शॉप धीरे धीरे बहुत सारे खुल रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन पे मोबाइल का सेल बढ़ रहा है। व्हाट डज दैट मीन, मोबाइल का यूजेज बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है। सो नाउ एनीवन हु इज इंटेंडिंग टू ग्रो द बिजनेस, दे विल इंट्रोड्यूस मोबाइल्स। ये कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास ना, हम लोग सुन के करते हैं, अच्छा ये चल रहा है क्या मार्केट में, तो लेट्स स्टार्ट दैट। यहाँ पे ये बिजनेस डेटा की बेस पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से उनको एक रिजल्ट मिलता है कि ये डेट से ये डेट के बीच में इस कैटेगरी का सेल इतना ज्यादा हुआ था, तो उसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट रहा था, ठीक है। अब मान लो Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे हर साल सेल आता है दिवाली का, ठीक है। नाउ दिस दिवाली Amazon want to Amazon want to bring more products of a category, ठीक है। एक कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाना चाह रहा है Amazon या फ्लिपकार्ट, और वो कैटेगरी कौन सी है, तो वो क्या करेगा, लास्ट 10 ईयर्स में 2011-12 से लेके 2022 तक, लास्ट 10 to 12 ईयर्स में, हर दिवाली, दिवाली का रेंज क्या था वो देगा, हर दिवाली में किस प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है। वो ग्राफ निकालेगा, वो पूरे पॉइंट्स निकालेगा। उसको पता चला कि दिवाली पे मोबाइल का सेल सबसे ज्यादा हुआ, लेट्स से मोबाइल का हुआ। फ्लिपकार्ट को पता चला कि उसके पास में दिवाली का सेल सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स पे हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस दिवाली रेफ्रिजरेटर या मोबाइल को ज्यादा सेल करने का ट्राई करेगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक दिवाली पे खरीदती है, ठीक है। दशहरे पे लोग गाड़ियां खरीदते हैं ज्यादा, तो चलो दशहरा आ गया, तो अभी हम गाड़ियों का सेल बढ़ा देंगे। तो ऐसी चीजें, ये जो नया बिजनेस ग्रो करना है ना, उनको अपना नया कैटेगरी बोलो या और एक्सपांड करना है, उसके लिए उनको प्रीवियस जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के एक छोटा सा पेपर पे रिपोर्ट बनता है, एक छोटी सी पीपीटी बनती है। यूजिंग दैट पीपीटी और रिपोर्ट, दे विल देन डिसाइड कि अभी अगला स्टेप क्या है, ठीक है। नाउ होप आई हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस कि पहले डिलीट क्यों नहीं करते डेटा, एंड उससे क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और किस तरह के बिजनेस लेवल डिसीजंस होते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी एग्जांपल, आपको शॉप खोलना है, ठीक है, आपके ऑलरेडी एक होटल है, उसके 3-4 ब्रांचेस है, आपको एक ब्रांच खोलना है। तो आप क्या करते हो, देखते हो कहाँ पे ज्यादा, like you can sell that food or whatever your hotel is for,
वो प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा सेल कर सकते हो, आप उसके हिसाब से स्टडी करके आप खोलते हो, बट आपका स्टडी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। Amazon, आप फोन ऑर्डर करते हो, आप जिस भी सिटी में हो, राइट, Amazon को दिखता है कि लेट्स से देयर इज अ सिटी विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में Amazon को मोबाइल ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, Amazon को एक नया वेयर हाउस खोलना है। वेयर हाउस मतलब ऐसी जगह जहां पे चीजों को लाके स्टोर किया जाता है। जैसे ही ऑर्डर आएगा उस वेयर हाउस से डिस्पैच होगा मोबाइल या जो भी चीज होना है डिस्पैच, ठीक है। तो Amazon वेयर हाउस डायरेक्टली विशाखापट्टनम में खोलेगा क्या? नहीं। Amazon स्टडी करेगा कि कहाँ से ज्यादा ऑर्डरिंग हो रही है और वहां पे डिलीवरी कितनी फास्ट है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे मैं अगर वेयर हाउस खोलूं तो मैं मैक्सिमम सिटीज या मैक्सिमम ऑर्डर्स को डिलीवर कर पाऊंगा जल्द से जल्द। तो उसके लिए वो पूरा डेटा से स्टडी करेगा कि इंडिया भर में कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं और उनका ऑर्डर कितनी देर में डिलीवर हो रहा है, ठीक है। और लेट डिलीवरी की वजह से कितने ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। मान लो अगर विशाखापट्टनम से हर दिन के 10,000 मोबाइल ऑर्डर हो रहे हैं और जिसमें से 5,000 ऑर्डर लेट डिलीवरी की वजह से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये डेटा के ऊपर एनालिसिस करने से पता चलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ एनालिसिस हैपेंस एंड दिस इज द रीजन कि ये सब डेटा स्टोर किया जाता है। गुड। देन व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है? डेटा स्टोर्ड इन सर्वर्स। सर्वर्स कुछ नहीं है, डेटा स्टोर्ड इन स्टोरेज एंड प्रोसेस्ड इन सर्वर। स्टोरेज और सर्वर, ये दोनों में क्या फर्क है? स्टोरेज, स्टोरेज में आप क्या करते हो? डेटा, ठीक है, डेटा को रखते हो। कितना डेटा? ओल्ड प्लस न्यू, ऑल योर डेटा इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज, ठीक है। एंड व्हाट इज सर्वर? व्हेन आई टॉक अबाउट सर्वर, ठीक है, या कंप्यूटर्स, इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन। नॉर्मल हमारे लैपटॉप में भी स्टोरेज होता है, ठीक है, बट व्हेन वी लाइक इन टर्म्स ऑफ क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स, स्टोरेज के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जहां पे डेटा स्टोर करने पे फोकस किया जाता है, ठीक है। हमारा लैपटॉप इंडिविजुअल यूजर के लिए, ठीक है, एंड दिस कंप्यूटर्स और सर्वर्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन। दैट मींस इट इज सीपीयू प्लस रैम, ठीक है। सीपीयू प्लस रैम, कितना सीपीयू कितना रैम है, इसकी बेस पे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कंप्यूटेशन बढ़ेगा, ठीक है। और कंप्यूटेशन या प्रोसेस करना है तो किस चीज पे प्रोसेस करेंगे? डेटा पे प्रोसेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। वी नीड डेटा टू प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस किस चीज पे होता है? सर्वर्स पे। और डेटा कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज में, ठीक है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज द बेस टू बिल्ड टू प्रोग्रेस, ठीक है। ये बेस बिल्ड करूंगा तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में आसानी होगी, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न? डेटा सेंटर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस सेशन। व्हाट इज डेटा सेंटर? डेटा सेंटर इज नथिंग बट अ बिल्डिंग, ठीक है, एक फैसिलिटी होती है जहां पे बड़े बड़े सर्वर्स और बड़ा बड़ा स्टोरेज होता है, ठीक है। सर्वर्स में डेटा प्रोसेस होता है, स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है। अभी मेरी मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, तो मैं अगर लोकली डेटा स्टोर करूंगा तो मेरे को डेटा स्टोर करने के लिए और सर्वर पे प्रोसेस करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में जो कंपनीज को बोलते हैं कि यू जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस, वी विल स्टोर योर डेटा फॉर यू, ठीक है, एंड वी विल प्रोवाइड यू द मशीन्स टू प्रोसेस द डेटा। आपको डेटा प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए जो भी लगता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने एक बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग में ढेर सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स ला के रख दिए। उन कंप्यूटर्स में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है, और प्रोसेस होता है। तो उसको बोलते हैं, ऐसी फैसिलिटी या ऐसी बिल्डिंग को बोलते हैं डेटा सेंटर। इफ आई गो हियर दिस, ठीक है, डेटा सेंटर इमेजेस, ये दिख रहा है, आपने मूवीज में देखा होगा ऐसा। ये कुछ नहीं, ये डेटा सेंटर है। ये जो रैक्स बने ना, इसके अंदर सर्वर्स लगे हैं पूरे ये, ठीक है। तो डेटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए
पावर सप्लाई, इंटरनेट सप्लाई, एयर कंडीशनिंग, वहां की साफ सफाई। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए अपना खुद का डेटा सेंटर बनाऊंगा तो मैं काम दूसरा क्या करूंगा, राइट? सो एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो आपको ये सर्विसेज रेंट पे देती है। ये सर्वर्स डेटा सेंटर वालों के होते हैं। इफ यू नीड, यू कैन रेंट द सर्वर्स एंड स्टोरेज फ्रॉम हियर। इंटरनेट, नेटवर्किंग, पावर, ठीक है, एयर कंडीशनिंग, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दिस कंपनीज हु प्रोवाइड डेटा सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज आके अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी, सब सारी चीजें डेटा सेंटर वाले डील करते हैं। ठीक है, सो पहला मैं खुद मेरा डेटा मेरे पास कंप्यूटर्स में स्टोर करता था। फिर मैंने क्या किया, उसको डेटा सेंटर पे देना शुरू कर दिया, रेंट पे। डेटा सेंटर पे मैंने रेंट पे मशीन्स ली, सर्वर लिया, स्टोरेज लिया। ठीक है, और उनको मैं रेंट देता हूँ, और वहां से मुझे डेटा और कंप्यूटर्स मिलते हैं काम करने के लिए। स्टोरेज एंड कंप्यूटर्स मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, दिस इज डेटा सेंटर। अब आपको डेटा समझाए, आपको डेटा क्यों स्टोर करते हैं समझाए, ठीक है, क्या टाइप के प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, हम डेवलपर्स नहीं है, हम प्रोसेस नहीं करने वाले डेटा, बट हमको ये आइडिया होना जरूरी है कि हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या। लाइक आई एम वर्किंग एट अ शॉप, आई डोंट नो व्हाट दैट शॉप इज डूइंग। ठीक है, सो इट इज यूजलेस ऑफ वर्किंग ओवर देयर। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मुझे पता तो चलना चाहिए कि वहां पे काम क्या होता है। सो फॉर दैट रीजन ऑल दिस बैकग्राउंड स्टोरी वॉज टू बी टॉट। ठीक है, जो लोगों को मालूम है, इट्स गुड। दिस वॉज फॉर पीपल हु डोंट नो, बिकॉज इनिशियली आई विल ट्राई टू मेक श्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। सबको एक एक साथ लाके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो नाउ डेटा। ठीक है, वाई डेटा, व्हाट इज बिग डेटा, ठीक है, व्हाट आर द इंडस्ट्रीज इन द मार्केट, ठीक है, वाई दे स्टोर डेटा, किस तरह का प्रोसेस करते हैं, किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, एंड वेयर दे स्टोर द डेटा एंड प्रोसेस द डेटा, एंड व्हाट इज डेटा सेंटर। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, पीपल, if you have any question you can post in the question Q&A or raise the hand. No, no doubt. Any doubt, any questions? No one? ठीक है, ओके देन। ठीक है, फिर कल मिलते हैं at 10 o'clock, 10 a.m. and we'll proceed with the introduction to cloud. ठीक है, I hope introduction to data is clear. Tomorrow we'll learn introduction to cloud. No questions, nothing, right? ठीक है, I like it's good for me get सब क्लियर रहा, सबको अच्छे से समझ में आया। ओके, so see you all tomorrow at 10 a.m. Have a good day then. Bye. Okay, all clear. Thank you, Pritam, for the feedback.